So I'll start with my topic for today. So today basically we are going to recap whatever we have covered as of now. We're not gonna learn any new thing today. We'll just recap whatever we have done as of now. So so first of all, what we have learned like what is programming, like giving instructions to computers. We have learned, right, like what is the programming importance of Python in AI, ML, and data science, real world applications of Python, and the structure of the course. So I wanted to know from Rajesh, can you let us know what is programming? Programming basically is a set of rules where we can define some logics for development of any particular particular module or application basically. Okay, great. Anyone who can explain importance of Python in AI, ML, and data science? Anyone who can explain this? Yes, sir. The Python has a high level language, which has most of the libraries which is used for most of the web development, data analytics, AI/ML, and some of the languages, sir, for real world projects. Yeah, true. It has a high scope for job opportunities, and it is a easiest. It has easiest language than the other Yes. programming languages. Yes. There are some other benefits also, like हमारे पास it's a first of all Python is easy to learn. हम लोग इसको easily समझ सकते हैं. दूसरा, इसके पास ह्यूज लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स हैं जो पाइथन के अंदर डेटा साइंस में काम करने के लिए या एआई मशीन लर्निंग में काम करने के लिए. एक सेकेंड. सो डेटा साइंस में काम करने के लिए जब हम पाइथन का यूज करते हैं तो जैसे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में क्या होता है कि बहुत सारे लाइब्रेरीज, टूल्स या फ्रेमवर्क्स का यूज होता है. तो वैसे ही पाइथन के अंदर ह्यूज लाइब्रेरीज है, बहुत सारा लाइब्रेरीज है जिसके हेल्प से हम मशीन लर्निंग के अंदर काम कर सकते हैं. जैसे नमपाई है, पैंडास है, मैटप्लॉटलिब है, एसके लर्न है, टेंसर फ्लो है, और जिसके हेल्प से हम मैथमेटिक्स भी ईजी कर सकते हैं. एनीवन हु कैन एक्सप्लेन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन? Can I give it a try? Yes, you can. Okay, so the first thing first is Python is used for developing various kinds of application, whether it is web application or mobile application. Okay. And then the second thing is we can say Python is also used in AI ML. AI, the reason being it is, as we said, as we discussed, that it is easy to write and it is platform independent. It supports all the platform. And the third is it is an open source. We can say it is free of cost. We can install as we have installed earlier. Yes. The Python Yes, from the yes. python.org, and it is lightweight also, and it is an interpreter language, because unlike if we see the C++ or C or other languages, so they are not interpreters. So they are like there is a compiler which compiles the program. Yes. But True. this is an interpreter over here, and it checks the code line by line. Okay, great. Just okay. So the structure of the course we already know. We are going to cover Python and then mathematics, then the other things like data cleaning, visualization, machine learning, deep learning. Now I'll move to the next part which we have covered, which we have completed the development environment setup. Some of them have faced issues like installing, running the Python notebook file from the VS Code, or launching the Jupyter notebook from the Anaconda.
some of them have not installed the environment yet, like Parveen was facing the issues in the setting up the development environment for Anaconda, and some of them have not completely not installed. That's fine. I just want to know from you guys, what is the development environment? Anyone, you can give the try. The hello, sir. Yes, yes, Parveen. Uh, this is an environment which we can write, create a code, write and read, and save the code, and which is able to download the code, and which is easy to readable for others when we can share this file. So for data science and machine learning, what all the tools you will install first for the development environment? Like Anaconda, like in Anaconda, we will have all the tools like Jupyter Notebook, Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, and like Seaborn, Matplotlib. Some of the tools and framework are total have in this total Anaconda navigator tool. Okay. Okay. Now over to Deva. Deva, can you tell me how can we install extensions in VS Code? Uh, just by visiting the website, just typing download VS Code, the google.com, and thereby we visit the VS Code website, which is a product of Microsoft, and then we can see the options to download the VS Code application. Okay. Abhay, are you there? Are you audible now? Can you speak? Abhay? Sir, right now I am audible. Okay. Thank Abhay, you, can sir, you for tell me? listening to Can you tell me what's the the extension for a Python file? What's the extension for a Python file? Like when we write. .py, sir. Okay. And Abhay, can you tell? .py and .ipynb. Okay. Abhay is telling or Parveen? Praveen, sir. Parveen, I asked this question to Abhay actually. Uh, And for notebook, IPYNB. Yes, correct. So, one more question from Abhay. What are the cells in IPYNB? That's all, sir. What are the cells in IPYNB फाइल के अंदर cells क्या होते हैं? And the points of Sorry? like a strings, yeah. जैसे कि मतलब सेल्स में बेसिकली से स्ट्रिंग्स तो सेल्स जो होते हैं सेल्स के अंदर क्या होता है कि हम मल्टीपल अपने जो हमारा जो कोड है उसके मल्टीपल पीसेस को अलग अलग सेल्स के अंदर रन कर सकते हैं। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे हम ईजिली कोड को डिबग कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स बना सकते हैं, अलग अलग मतलब मीन्स सेल्स के अंदर हम अलग अलग कोड लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम नोट्स भी लिख सकते हैं कि वो कोड किस चीज़ के बारे में है। तो ये IPython नोटबुक के फ़ायदे हैं। एनाकोंडा एग्जैक्टली में क्या है, कोई बता सकता है? मीन्स जो एनाकोंडा टूल हम यूज कर रहे हैं ये एग्जैक्टली में है क्या? एक टूल किट है जो कि जिसमें बहुत सारे कोड एडिटर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि जुपिटर है। तो आपको एक परवीन, आप मत बोलना, परवीन को ये पता है इसलिए मैं कोई आप बता सकते हो कि जैसे हमने जुपिटर नोटबुक रन किया था एनाकोंडा से और हमारे पास VS कोड भी है रन करने के लिए पाइथन नोटबुक, एक ऑनलाइन नोटबुक भी है जिससे हम IPython नोटबुक को IPYNB फाइल को रन कर सकते हैं। कोलैब, यस। तो गूगल का एक कोलैब आता है, आप लोग सब रजिस्टर कर लेना, मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये गूगल का कोलैब है। अगर किसी को फ़िलहाल के लिए इन्वायरमेंट सेटअप में इशू आ रहा है तो आप गूगल कोलैब सर्च करोगे, यहाँ पे कोलैब खुल जाएगा। आप कोलैब के अंदर भी अपने कोड को रन कर सकते हो। इस गूगल कोलैब के अंदर जैसे सर्च करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके गूगल वाले ईमेल
से ऑलरेडी आप लॉगिन करोगे, ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप कोड को इस तरह से लिख के रन कर सकते हो। आपको कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो ये सारा ड्राइव में सेव होता है ना? हाँ, सारा फाइल ड्राइव के अंदर से होता है। मान लो आपका सिस्टम कमज़ोर है, आपके सिस्टम में रैम कम है या कोई भी दिक्कत है, लेकिन आपके पास इंटरनेट अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका इन्वायरमेंट सेटअप नहीं हो पा रहा है, आप लोकली रन नहीं कर पा रहे हो, तो गूगल कोलैब सर्च करना सिंपली। यहाँ पे गूगल कोलैब, ये जो पहला वाला आएगा इस पर क्लिक करना और यहाँ से आप एक नया फाइल क्रिएट कर लेना, न्यू नोटबुक। ये सारा गूगल ड्राइव में सेव होता है, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे नोटबुक्स ऑलरेडी यहाँ पे है, काफ़ी सारे नोटबुक्स है मेरे, बहुत पुराने पुराने नोटबुक्स है। ये देखो आप 2020 का नोटबुक भी अभी तक सेव करके रखा है। ये मेरे 2020 के नोटबुक्स भी, आप कितना पुराना भी नोटबुक है इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करना, एक नया नोटबुक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस नोटबुक पे भी आप डायरेक्टली जो है कोडिंग कर सकते हो बिना किसी इन्वायरमेंट सेटअप की। बट ये तब करना जब आपका सिस्टम वीक है, रैम कमज़ोर है, या फिर आप रन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको सीखना है, मीन्स कि आपका इन्वायरमेंट सेटअप नहीं हो पा रहा, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, देन गूगल कोलैब ईजी टू यूज है, आप यहाँ पे आके ईजिली रन कर सकते हो। तो मूव करते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो ये हमने देख लिया डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप। इसके बाद जुपिटर नोटबुक, सेम चीज़ जो IPython नोटबुक है। Anyone who can help me in explaining this Jupyter notebook? Piyush? Yes. What is Jupyter notebook? Hello. What is Jupyter notebook? I don't know right now. Okay. Sahil? I also don't know. Okay, fine. So Jupyter notebook is the same thing where you can write the your code in different cells. हम अलग अलग सेल्स में अपने कोड को लिखते हैं, उसको अलग अलग रन कर सकते हैं। उसी सेम नोटबुक के अंदर हम मार्कडाउन से नोट्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं। हम जो आउटपुट है कोड का उसी फाइल के अंदर भी देख भी सकते हैं, नीचे ग्राफ्स वगैरह भी नीचे ही दिख जाएगा आपको ईजिली। तो Jupyter notebook is a very helpful you can say it's like a digital book for your machine learning codes. एक क्वेश्चन है सर। हाँ, जब काम मतलब जैसे कि कोलैब में ये सब कुछ हो सकता है, तो लोग मतलब जुपिटर नोटबुक क्यों प्रेफर करते हैं? हाँ, तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने परवीन को भी ये चीज़ बताया था, परवीन ने भी सेम क्वेश्चन मेरे से किया था। तो यस सर। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि जब आप गूगल कोलैब, तो चलो लर्निंग के लिए आप कर रहे हो, आपके पास मान लो लैपटॉप स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब हाई मॉडल यूज कर रहे हो तो आप गूगल कोलैब का मान लो आपने यूज कर लिया, जब आपके पास लैपटॉप स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो उन ऑर्गेनाइजेशन की जो कोड होती है, जैसे आप तो खुद भी वर्किंग हो तो आपको पता होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो कोड होती है वो आप कहीं ऐसे ड्राइव में अपलोड नहीं कर सकते, चाहे उस कंपनी की भी ड्राइव में नहीं अपलोड कर सकते। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट का इन्वायरमेंट अलग होता है। आप क्लाइंट के कोड को अपने ऑफिस के गूगल ड्राइव में भी अपलोड नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। हाँ, वो क्लाइंट के लैपटॉप में ही रन करना होगा। तो क्लाइंट के लैपटॉप में जब आप रन करोगे, तो क्लाइंट के लैपटॉप में तो आपको जुपिटर नोटबुक ही इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, वो ऑफलाइन करने के लिए, मतलब लोकली करने के लिए। लोकली। हाँ, तो वहाँ पे तो आप ड्राइव, गूगल कोलैब लर्निंग के लिए अच्छा है, आप लर्निंग के लिए कर सकते हो, लेकिन जुपिटर नोटबुक का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो देयर यू हैव टू यूज़ द जुपिटर नोटबुक। क्योंकि आप क्लाइंट के कोड को इधर उधर करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लीगल इशूज होंगे। हाँ, मतलब वीपीएन वगैरह से सब सिंक रहता है ना, वो वो डेटा टोटल वो सिक्योरिटी कंप्लीट पता चल जाएगा, वो तुरंत पता चल जाएगा कि आपने कोड कहाँ अपलोड किया है, कैसे किया है, और वो फिर तुरंत इन्फोसेक वाले वो फिर लीगल इशूज कर देंगे। तो कोड को कभी भी इधर उधर छेड़छाड़ मत करना। किसी AI टूल पे अपलोड करना, ये सब तुरंत पकड़ लेते हैं लोग, फिर वो लीगल इशूज आता है। तो इसी वजह से लर्निंग के टाइम आप गूगल कोलैब का यूज करो, कंपटीशंस वगैरह में गूगल कोलैब का यूज करो, लेकिन जब आप किसी एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, और एक और चीज़, जैसे आप कभी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको जुपिटर नोटबुक यूज करना चाहिए, जब आपका पूरा कोड आपके सिस्टम के अंदर है। ओके।
और एक और है, जैसे कि मान लो आप किसी बड़े मॉडल पे काम कर रहे हो, किसी लैंग्वेज मॉडल पे, किसी इमेज मॉडल पे, या किसी वीडियो मॉडल पे, जहाँ पे हमें इमेज टू वीडियो बनाना है, या फिर जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं ना वीडियो जनरेशन, इमेज डालते हैं वीडियो बन जाती है। तो अगर आप ऐसे किसी बड़े मॉडल पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे ना 10-10 50-50 GB तक का डेटा यूज होता है, मीन्स इमेजेस यूज होते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो वो आप ड्राइव पे अपलोड नहीं कर सकते ना, मीन्स 50 GB डेटा कहाँ से अपलोड करोगे। तो उस सिचुएशन में फिर हमें जुपिटर नोटबुक यूज करना पड़ता है। तो ये था। और कोई क्वेश्चन? ओके, नहीं बस इतना ही। देन विल मूव टू द नेक्स्ट Hello, स्लाइड। sir. हाँ, यस यस Hello, sir. यस यस। I have a doubt about that Jupyter Notebook. Is there any storage facility in Anaconda Navigator? Is they provide any this much of storage facility? Because we in Google Colab we will connect to the Google Drive for our personal Google Drive because it stores a huge data. So what's the difference between that Google Colab and Jupyter, sir? Is storage about storage? See, Anaconda itself does not provide any online storage facility. Anaconda just एक टूल, एक इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए हम Anaconda का यूज करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। Anaconda में कोई ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी हमें Anaconda नहीं देता। ये तो बस हम इसको डाउनलोड करते ताकि पूरा पाइथन इन्वायरमेंट और वो जुपिटर नोटबुक ये सारा हमारे लोकल सिस्टम में अपलोड हो जाए। कुछ ऑप्शन है जैसे Anaconda क्लाउड है, इट्स जस्ट लाइक गिटहब, जहाँ पे आप अपने नोटबुक्स वगैरह को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, Anaconda क्लाउड, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर लेना। और एक जुपिटर हब है जिसका आप यूज कर सकते हो, गूगल कोलैब के जैसा ही है। बाकी Anaconda मोस्टली जो है वो लोकल स्टोरेज, आपके सिस्टम के स्टोरेज पे ही काम करता है। जितना स्टोरेज आपके सिस्टम में है उस हिसाब से ही वो काम करता है। Because you have told that whenever you are training a model, it uses a huge data and a huge storage like 50 GB, about 60 GB. That then you have to keep it in your system. You have to increase your system local storage, and or else you can also, but in that situation you have to train in your system in your laptop, then you have to increase your system storage actually. See, not usually The company 50 will provide, no sir, that thing company will provide, but यूजुअली 50 GB नहीं होता है। कभी कभी 1 GB भी होता है, कभी कभी 2 GB भी, कभी 5 GB। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब बहुत बड़े मॉडल पे आप काम करोगे जैसे कि इमेज टू वीडियो, तो इमेज टू वीडियो जनरेशन ये कोई छोटा मॉडल नहीं है। ये जैसे ChatGPT है, तो वैसा कोई मॉडल पे अगर आप काम करोगे लैंग्वेज मॉडल पे, तब बहुत बड़ा डेटा सेट का यूज़ होता है, उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब छोटे छोटे फीचर्स पे काम करोगे ना, तो इतना बड़ा डेटा यूज नहीं होता है। फिर 1 GB 500 MB ऐसा ही यूज़ होता है। जितना ज़्यादा डेटा आप अपने मॉडल को दोगे उतना अच्छा वो ट्रेन होगा और ईजिली वो करेक्ट आंसर देगा फिर। Okay, thank you. ओके, देन योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, हमने सबने पहला पाइथन प्रोग्राम बनाया हेलो वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। दिस टाइम आई विल गो विथ अभय। प्रिंट फंक्शन के बारे में बताइए। प्रिंट फंक्शन लाइक कि जब हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं सर। सॉल्यूशन नहीं, जब भी हमें किसी भी चीज़ को डिस्प्ले पे आउटपुट करवाना होता है, प्रिंट करवाना होता है, मतलब हमें डिस्प्ले पे दिखाना होता है, तो उस सिचुएशन में हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। सॉरी, प्रिंट वर्ड के साथ पैरेंथेसिस को यूज करते हैं, मतलब ब्रैकेट का। हाँ, प्रिंट के बाद हम फिर ब्रैकेट पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, उसके अंदर फिर मैसेज लिखते हैं। हाँ, तो ये था प्रिंट फंक्शन। इंडेंटेशन रूल्स, यूज कैन यू एक्सप्लेन इंडेंटेशन रूल दिस टाइम आल्सो? डोंट टेल आई डोंट नो। इंडेंटेशन वो जो टैब का यूज किया जाता है, जो स्पेस लेता है एक किसी सेंटेंस के बाद। हाँ, वो उससे होता है क्या ना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। जैसे कि इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ लिखा है, इफ़ एज, सॉरी ये मेरा पेन जो है ना ये बड़ा वाला सेलेक्ट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो जैसे कि एक ब्लॉक है आपका, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, तो
दूसरे कोड में क्या होता है ना, जो इसके अंदर का ब्लॉक है वो इस तरह से चालू होता है कर्ली ब्रेसेस से, लेकिन पाइथन में क्या होता है कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं होता है, वो वहाँ पे इंडेंटेशन का यूज होता है। जब हम आगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको इंडेंटेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। कमेंट्स इन पाइथन, साहिल कैन यू एक्सप्लेन कमेंट्स? Sahil, you are not studying, huh? You're not studying. Right now any code Sorry? सिर्फ जब हेडिंग लिखते हैं तो उसी को कमेंट बोलते हैं सर। हाँ, जैसे होता क्या है कि आप तो चलो जुपिटर नोटबुक का यूज कर रहे हो तो वहाँ पे अपने मार्कडाउन के हेल्प से नोट्स लिख लिया है, लेकिन यूजुअली हम जुपिटर नोटबुक का मान लो नहीं यूज कर रहे हैं, हम नॉर्मल पाइथन फाइल का यूज कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तो कोड के अंदर जो हम कमेंट्स लिखते हैं वो होता है कमेंट्स, जो हम सिंगल लाइन या मल्टी लाइन में लिखते हैं। और हाँ, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कमेंट्स होते हैं, जावा में भी, जावा स्क्रिप्ट में भी, C++ में भी। तो ये जो बीटेक वाले हैं ना सब, ये कंप्यूटर साइंस वाले, इनको तो पता ही होगा, और राजेश जी को भी पता होगा कमेंट्स क्या होता है। Sir, I have already used in JavaScript and यस, फ्रंट एंड आपने React.js में यू हैव ऑलरेडी यूज्ड कमेंट्स, या yes. कैन यू एक्सप्लेन केस सेंसिटिविटी राजेश एंड नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल्स इन डेटा? Basically, Python is a case-sensitive language where I think if I'm putting in number, number and a small letter number, they are not treated same. Basically, they are treated a different way actually. ओके, या सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था कि नेम है तो जो छोटा, जैसे कि किसी ने अगर ऐसे लिखा है NAME और किसी ने ऐसे लिखा है, तो ये दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, इसका स्मॉल है, इसका कैपिटल है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स। तो पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे ना जो इंटरव्यूअर होते हैं, जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वो लोग, इसलिए करते हैं क्योंकि वो ट्रिक मीन्स वो देखना चाहते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है या आपने बस रट्टा मारा है, बीच में से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ के आ गए और डायरेक्टली एक इंटरव्यू देने बैठ गए। तो वो ये सब बेसिक चीज़ पूछते हैं कि व्हाट इज इंडेंटेशन इन पाइथन, व्हाट इज केस सेंसिटिविटी, व्हाट आर द नेमिंग रूल्स फॉर द वेरिएबल। वो इंटरव्यूअर बेसिक से ही स्टार्ट करता है। ये मत सोचना आप कि मैं एडवांस पढ़ के जाऊँगा तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। वो हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं ना तो हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी उतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के 1 घंटा इंटरव्यू लें। 10 मिनट 15 मिनट बहुत है किसी को भी जज करने के लिए कि इसको आता है कि नहीं आता है। तो आप बेसिक से, इसलिए बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अंडरस्टैंडिंग द पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी देखा, इट्स अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग वैल्यूज। परवीन, कैन यू एक्सप्लेन with an example about variables? Yes, sir. I will explain. Variables are the containers which we can store the data by using a equal to operator, like assignment operator. We can store the data in this variables. Means we should give only start with letters, or do not use numbers or like characters, like some of the characters are there, they will not use. Only we should use letters, and we should use like underscore in between them, and Okay. we should use numbers after the start of the letters. Okay, got it. Yeah. So those are the rules for the naming of the variables. Deva, can you give an example of variable? What exactly it is? Some real world examples. Variable. Yes. Okay. So for example, if I take D equals to Deba, Okay. then if I write D equals to Deba, so D is the container. I mean, say I'm assigning the value Deba, which is a string value. It should be written under double quotes. Okay. I'm assigning the value Deba under the variable D. Yeah. So D is the container wherein I'm assigning the value Deba. यस, तो जो D है वो कंटेनर है, D जो है वो कंटेनर है, करेक्ट है। लेकिन कंटेनर एग्जैक्टली में क्या है, तो कंटेनर जो है वो एक एड्रेस है। क्या है? Address.
एड्रेस है कहाँ, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, प्रोग्राम हम एक मेमोरी के अंदर लिखते हैं। तो उस जैसे जो ये कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के जो इंजीनियरिंग बीटेक वाले हैं उनको पता होगा कि मेमोरी क्या होता है, इसके अंदर कैसे वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। तो बेसिकली जो वेरिएबल है ये एक एड्रेस है इस मेमोरी के अंदर कि हमारा वेरिएबल जो है वो कहाँ पे स्टोर है। तो इट्स लाइक अ एड्रेस दैट मीन्स अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग वैल्यूज़। तो ये था वेरिएबल के बारे में। रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग ऑलरेडी हमें पता है कि हम लेटर्स यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, नंबर पहले यूज नहीं कर सकते, और अंडरस्कोर भी पहले यूज कर सकते हैं, नंबर पहले यूज नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। कैन समवन एक्सप्लेन व्हाट इज डायनेमिक टाइपिंग इन पाइथन? Yes, sir. Dynamic typing means we can change the variable name or value inside the variable, sir. In static, it can't change the values, sir. इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टैटिक और डायनेमिक, और पाइथन इज अ स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो Static is a constant value which can't change, sir. Dynamic in which we can change the values. नो, तो पाइथन डायनेमिक टाइपिंग है या नहीं है? मैं मतलब वो कैसे है, कोई एग्जांपल से बता सकता है कि हाउ पाइथन इज डायनेमिक टाइपिंग? एनीवन एल्स? आई विल एक्सप्लेन, बट एनीवन हु Yes, yes. If we write x is equal to 10, then in Python integer will default coming. see it's What I correct. understand is like we Yes, don't yes. need to define the data type. एग्जैक्टली For एग्जैक्टली जैसे कि मैं अब दिखाता हूँ कि डायनेमिक टाइपिंग का क्या मतलब होता है। जैसे अभी तक हमने वेरिएबल्स बनाए, हमने नेम इज इक्वल टू हर्ष बनाया, एक्स इज इक्वल टू 10 बनाया, एज इज इक्वल टू 25 बनाया। हमने कहीं पे भी मेंशन किया कि ये इंट एज इज इक्वल टू 25, या हमने कहीं पे भी मेंशन किया कि स्ट्रिंग नेम, ऐसा हमने कहीं पे भी पहले से बताया कि स्ट्रिंग है, इंट है? हमने कहीं पे भी पहले से लिख के नहीं बताया उसको, पाइथन को, कि नेम जो है वो स्ट्रिंग है या एज जो है वो इंटीजर है। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स ड्यूरिंग रन टाइम, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स ड्यूरिंग रन टाइम दैट व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो हमें पहले से बताने की ज़रूरत नहीं है पाइथन को कि ये वेरिएबल इस टाइप का है। यही होती है डायनेमिक टाइपिंग। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूअर पूछते हैं कि पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे हमें बता सकते हैं कि पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज because we don't have to tell the Python that was the type of the variable, it's automatically detects during the run time में ये automatically detect कर लेता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि रन टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम क्या होता है। तो रन टाइम क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो उसके बाद जो भी ऑपरेशंस होती है वो होती है रन टाइम। तो रन टाइम में पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि इसकी ये टाइप है। लेकिन अगर किसी ने C++ पढ़ा है या जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, या किसी ने अगर जावा या C++ पढ़ा है, तो आप देखना C++ में हम लोग पहले से वेरिएबल की डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, ये इंट होगा या ये स्ट्रिंग होगा, ये फ्लोट होगा। वो पाइथन में नहीं करते हैं। तो इसलिए पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद हमने देखा था बुलियन। यस, एक मिनट, उसमें हम लोग क्या उसका मतलब नोट डाउन करने के लिए क्या लिखेंगे? पाइथन इज डायनेमिकली टाइप एज वी डोंट नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? Python is dynamically typed because you don't need to declare the data type of a variable. The type is decided automatically at runtime based on the value assigned to it. मीन्स वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो किस तरह का वैल्यू है वो पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, और जो भी वैल्यू होगा उसके आधार पे पाइथन उसकी टाइप को डिसाइड कर लेगा।
So Python is Okay. called dynamically typed because you don't need to declare the data type of variable. The type is decided automatically at runtime based on the value assigned. Okay. Sir, one thing I have confused about that. But in string concatenation and concatening some of the adding some of the string or integer, we should mention no sir. And it is int. It is a string type. So राइट प्रवीण, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि जब हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दी, एक हमने असाइन किया स्ट्रिंग, एक हमने असाइन किया नंबर, तो अब तो ये असाइन हो चुका है ना उनको कि एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है। अब हमने असाइन वैल्यू तो असाइन कर दी उसको। तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जब हमने प्रोग्राम को रन किया, रन करने के तुरंत बाद पाइथन खुद से जान जाएगा कि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। अब पाइथन तो ये जान चुका है कि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। तो जब पाइथन जान चुका है कि ये स्ट्रिंग और ये इंटीजर है, तो आप दोनों को ऐड कैसे करोगे? Then we need to convert this by giving a data type. हाँ, टाइप कास्टिंग जो मैं आज मैं वो उसकी वीडियो अपलोड करूँगा टाइप कास्टिंग की, तो आपको टाइप कास्टिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। Now I'll move to next, that is Boolean data type. तो Boolean data type, can someone explain Boolean data type? बूलियन एक डाटा टाइप है जो केवल दो वैल्यू लेता है, या ट्रू या फॉल्स। ओके, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। लेकिन सपोज किसी ने ट्रू ऐसे लिखा है, मान लो, तो क्या ये करेक्ट है पाइथन के अंदर? फॉल्स सर। ये करेक्ट नहीं है ना, क्योंकि पाइथन के अंदर हमेशा ट्रू क्या होता है? बड़ा होता है, कैपिटल होता है। और बुलियन को हम लोग पाइथन के अंदर कैसे यूज करते हैं? अकेले यूज करते हैं या किसी के साथ यूज करते हैं? I didn't understand your question, sir. मतलब I'm asking, when we use boolean in our program, when there is a comparison, sir, if the person age is greater than or equal to 18, we should if he is less than if his age is less than 18, then it is going to be false. Okay, can someone explain what is logical operators? Logical operators are the operators which is used to AND operator, which is used for both values are should be true, or should be used when one of the values should be true, it will be true, sir. Okay. And not operator is used for basically, sir, using logical operator, we are combined. This is and I know about and all. It's fine, no issues. मतलब दो कंडीशनल स्टेटमेंट को ना कंपेयर करता है। हाँ, मींस लॉजिकल ऑपरेटर ऐसा है कि जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस है, सिर्फ दो ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था एक ड्राइविंग लाइसेंस का, या फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था कंपनी में रिक्वायरमेंट का, कि किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है लेकिन उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके साथ साथ आप 18+ होने चाहिए, उसके साथ साथ आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन हो गए। तो 3 कंडीशन हो, 4 कंडीशन हो, 5 कंडीशन हो, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं एंड और, या एंड और का। नॉट का तो हम एक ही कंडीशन को रिवर्स करने के लिए नॉट का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जब आप प्रोग्राम करोगे तो देखना लॉजिकल ऑपरेटर्स का बहुत यूज होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का बहुत यूज होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना। आप अपने से भी एग्जांपल्स कुछ करना देख के, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है बहुत। एनी क्वेश्चन फ्रॉम बूलियन डेटा टाइप? कंप्यूटर साइंस में भी वो गेट बनाते हैं क्या, एंड और नॉट गेट जो बनाते थे?
वो जो गेट हम लोग बनाते थे वो पाइथन के अंदर मीन्स इसके अंदर है, पाइथन के अंदर वो डेटा टाइप है, लेकिन वो यूज नहीं होता उतना, मतलब मैंने मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी तक मैंने उतना यूज़ नहीं किया उसको। ओके, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पता होगा। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वो गेट का मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन कंडीशन वही है कि दोनों, जैसे कि ए और बी है दो कंडीशन, तो दोनों दोनों ट्रू होना चाहिए तभी एंड कंडीशन ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स But हुआ तो false। implementation is different, sir. या In electrical and computer science, Yes. and or not, or logical operators used in computer science is different way, and in electrical it is a different way. For motherboards, they will use logical operators हाँ, लेकिन and or not. इन द एंड जब अगर आप जैसे देखोगे स्टार्टिंग तो सब सेम ही है, मतलब फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो दो ही होती है, 0 1 1 0। इलेक्ट्रिसिटी की भी दो ही वैल्यू होती है, 0 1 1 0, जिसमें हमें निगेटिव पॉजिटिव कहते हैं। सेम वे लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑल्सो एंड ट्रू फॉल्स। ये जो ट्रू फॉल्स है ना, ये वही 0 1 1 0 जो हम सर्किट में यूज करते हैं। जब हम लोग सर्किट डिजाइनिंग करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिकल का है तो वो मीन्स अगर किसी कोई ईसी या डबल ई का है तो वो उसको पता हो। जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे भी 0 1 ही, सारा चीज़ 0 1 से ही होता है, एवरीथिंग 0 1 1 0 0 1। स्विच सिस्टम है, हाँ सर्किट ब्रेक करेगा, सर्किट चालू करेगा। तो वही है, यहाँ पे भी वही है, बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स। ये जो ट्रू फॉल्स है ना, ये एक्चुअल में है तो 0 1 ही। एक्चुअल मीन्स जो मशीन लैंग्वेज है, अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, ये सब, ये जो पाइथन वगैरह है, ये तो सारा हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज जो आपको ईजिली समझ में आ जा रहा है, लेकिन जो मशीन लैंग्वेज होती है वो पूरा बाइनरी नंबर्स पे बेस्ड होती है, ये आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। इसको पढ़ना बहुत हार्ड होता है। इस तरह 0 1 0 1 ये होती है मशीन की लैंग्वेज। तो ये जो पाइथन है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इंटरनली कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज में, उसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट होती है जाकर। तो मशीन जो लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। हाँ, ये जो पाइथन इट्स ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, लेकिन जो मशीन जो लैंग्वेज समझती है ना, वो 0 1 0 ये बाइनरी नंबर से समझता है वो। तो ये है मीन्स बाइनरी नंबर का पूरा गेम है। तो एक्चुअल में सब कुछ बाइनरी नंबर भी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट, मोबाइल, लैपटॉप सारा बाइनरी नंबर से ही काम करता है। तो जेरॉक्स मशीन भी, हाँ यस एग्जैक्टली, वहाँ जहाँ 1 1 रहता है वहाँ काला काला प्रिंट छोड़ता है, हाँ। और व्हाइट या तो ब्लैंक रहता है वो 0 0 कंसीडर करता है वो। तो ये मशीन लैंग्वेज जैसे अब जिन्होंने एकदम डायरेक्टली पाइथन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट की है, आप आज आप ये जब क्लास खत्म हो जाए आप यूट्यूब पे जाके पढ़ना मशीन लैंग्वेज क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रोग्रामिंग ऐसे ही काम करती है। जैसे मैं तो डेटा साइंस, मैं तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ये सब बहुत पढ़ा है। लेकिन जो बीटेक बैकग्राउंड से नहीं है, जो दूसरे नॉन टेक है, वो एक बार जाके देखना आप यूट्यूब पे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, सॉरी मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो जो भी क्वेश्चन है आपको, कुछ भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स ऑल्सो, इस कोर्स से भी आउट ऑफ द बॉक्स ऑल्सो, जो भी पूछना आप पूछ सकते हो। Hello, sir. यस प्रवीण। I have a doubt regarding the mathematics part, sir. Yes. How it is used in the data science, in a coding way or in like that? I'm not understanding that. How should I tell? Because we Coding do way? mathematics in book, no, sir. Yes, tell me. How we use this mathematics, statistics formulas and probability, how we use this in machine learning and prediction purpose, how will we use? Tell me in detail, sir. ओके। सो सबसे पहले जो मैथमेटिक्स है वो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की एक बैकबोन है। मींस आप बिना मैथमेटिक्स समझे, डेटा साइंस में जो मैथमेटिक्स होता है उसको बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते, मशीन लर्निंग का यूज ही नहीं कर पाओगे। और रही बात कि हम उसको कैसे यूज करते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग में हम उसे डायरेक्टली यूज करते हैं या फिर उसके फार्मूला को हमें याद करना पड़ेगा, जो प्रवीण ने आपने मुझसे पहले भी पूछा था। तो जैसे होता क्या है कि
जैसे आप लीनियर सपोज लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, आपने लीनियर अलजेब्रा के बारे में पढ़ा। लीनियर अलजेब्रा होता है वेक्टर्स और मैट्रिसेस। अब आपने पढ़ा कि मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिक्सेस मैं बताता हूँ जैसे मैट्रिसेस क्या होती है। ये Yes, क्लास sir. 12 You का can सब्जेक्ट use है। this Google so we can also understand better. यस, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये क्लास 12 का सब्जेक्ट है, ये मैथ का सब्जेक्ट है। जो जिसने पढ़ा होगा 12th मैथ, तो आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर रो होते हैं, कॉलम्स होती है, ठीक है। अब जैसे होता क्या है, एक सेकेंड रुको, जैसे मैं ये समझाता हूँ आपको। जैसे ये इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है, ठीक है, दिख रहा है आप लोग Okay. को। तो हाँ. अब देखो मैथ का यहाँ कैसा खेल है। ऐसा नहीं है कि हमें मैथ का फॉर्मूला लिखना पड़ रहा, हम करेंगे तो सारा कोड से ही, लेकिन हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे चाहिए। जैसे कि आप सबने मैट्रिक्स पढ़ा होगा 12th के मैथ में। लीनियर अलजेब्रा के अंदर सब्जेक्ट है ना वेक्टर, मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का मतलब होता है रो और कॉलम में डेटा को ऑर्गेनाइज करना, रो और कॉलम के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करना। मैं एक जैसे यहाँ पे ये रो है और ये कॉलम्स है, मल्टीपल कॉलम्स है ना, जैसे एक्सेल के अंदर होता है मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज, उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है कि नहीं। हाँ. Okay. समझ में आ रहा है जैसे मैट्रिक्स क्या होता है। 12th में आपने मैथ में पढ़ा होगा मैट्रिक्स। हाँ. Yes. हाँ. रो और सैंपल्स होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती है। हाँ. तो डेटा साइंस के हाँ. अंदर जो डेटा होता है ना, डेटा, तो वो डेटा क्या होता है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर वो डेटा स्टोर होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में। जैसे यहाँ से आप ध्यान से देखो, ये एक इमेज है, किसी बंदे का एक इमेज है। तो ये जो किसी बंदे का इमेज है ना, दिस इज अ इमेज ऑफ अ पर्सन, एंड दैट पर्सन इमेज इज स्टोर लाइक अ मैट्रिसेस, जहाँ पे मल्टीपल हमारे पास कॉलम्स है, रो और कॉलम मल्टीपल सेल्स है, ये इसको हम सेल बोलते हैं। मल्टीपल हमारे पास ये कॉलम रोज के अंदर ये वैल्यूज है। जैसे कि यहाँ से रो, ये कॉलम स्टार्ट हुआ, ये रो स्टार्ट हुआ, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं कि सेल नंबर, ये कॉलम, ये 34 में कौन सा वैल्यू है, 6, ये ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है, ये फिर इस तरह से मतलब वैल्यू स्टोर होती है मैट्रिक्स के अंदर। अब मैट्रिक्स तो मैथ का पार्ट है, लेकिन प्रोग्रामिंग में जो इमेज है वो भी मैट्रिक्स के अंदर स्टोर होती है। तभी फेस रिकॉग्निशन होता है। फेस रिकॉग्निशन कैसे होता है, कभी आपने सोचा है कि आप आईफोन यूज कर रहे हो या फिर फ़ोन यूज कर रहे हो, मान लो फ़ोन यूज कर रहे हो, आपने फेस अनलॉक किया, आपके फेस से फ़ोन अनलॉक हो गया। हाउ, कैसे हुआ अनलॉक? वो इस तरह से होता है कि आपका जो इमेज होता है ना, जो आपका फ़ोन स्टोर करता है, वो इसी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में स्टोर करता है। तो सपोज कि ये जो सेल नंबर 214 है या 220 है या 237 है, ये जितने भी सेल है, अगर मेजॉरिटी सेल आपके फेस से मैच नहीं कर रहे हैं, मान लो कि 80% सेल जो है इसके अंदर जो वैल्यूज है वो मैच कर गई आपके फेस से, तो तब तो ये आपके फेस को अनलॉक कर देगा। लेकिन अगर मैच नहीं करती है, नहीं अनलॉक करेगा। वैसे ही होता है रिकॉग्निशन, फिंगर का भी वैसे ही रिकॉग्निशन होता है कि ये कैट है या एनिमल है या रोड पे, जैसे कि सेल्फ ड्राइव कार होती है ना, तो उसको डिटेक्ट करना होता है कि सामने कोई पर्सन जा रहा है, तो इसी मैट्रिक्स के हेल्प से वो डिटेक्ट करता है। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, ये एक 3D मैट्रिक्स, ये इसके अंदर देखो 3D है, ये इसके अंदर इस इमेज को मल्टीपल वैल्यूज़ को इसने स्टोर किया है। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैथ जो है, जैसे ये देखो, ये कैट, इस कैट की वैल्यू को इसने मैट्रिक्स के अंदर स्टोर किया है। तो इस तरह से मैथ का हम यूज करते हैं। पहले हम इमेज को मैट्रिक्स के फॉर्म में मैट्रिक्स में स्टोर करते हैं इमेज को, और फिर हर पिक्सल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इमेज इनटू मैट्रिक्स। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर ये है कि हम कैसे मैट्रिक्स को यूज करते हैं, कैसे वेक्टर्स यूज होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट, हाँ, दूसरी चीज़ें भी है, जैसे कैलकुलस है, जहाँ पे हम एरर वगैरह को एरर्स वगैरह हैंडलिंग करते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है।
तो ये है कुछ एग्जांपल्स जिसके हेल्प से हम मैथ और हम जैसे एक्चुअल मैथ में क्या होता है कि हमें फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे है ये, जैसे ये, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फार्मूला यूज कर रहा, तो ये फार्मूला यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ दिस फार्मूला, मीन्स आपको ये फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे ये फार्मूला कैसे काम कर रहा। ऐसा नहीं है कि आपको रटने की ज़रूरत है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, बट यू हैव to understand this. You should have a basic understanding of this, not remembering. See, remembering will not work now. Everyone know कि वी हैव टू गूगल इट टू डू समथिंग। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो कंपनी के अंदर भी, तो वो उनको भी पता है कि हमें गूगल करना ही पड़ेगा, बिना गूगल करे कोई कोडिंग नहीं करता। चाहे 10 साल एक्सपीरियंस भी हो, राजेश जी को भी ये पता है, अगर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, बिना गूगल किए कोई कोडिंग नहीं करता। तो किसी भी फार्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो जब हम इसको पाइथन में, सेम फार्मूला को जब हम पाइथन में यूज करेंगे ना, तो पाइथन हैज़ ऑलरेडी इन बिल्ट फंक्शन, जैसे प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन का हमने यूज किया, तो या फिर हमने इंट फंक्शन का, हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया था, या प्रिंट, जैसे हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया था, पाइथन के पास ऑलरेडी एक प्रिंट फंक्शन है जिसके हेल्प से हम आउटपुट, वैसे ही नमपाई, पैंडास, इनके पास जो पाइथन की जो लाइब्रेरीज है ना, इनके पास ऑलरेडी इन सारे फार्मूला के शॉर्टकट है, कुछ फंक्शन है जिसके हेल्प से ये सब कुछ कर लेंगे। तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत होगी कि इस फंक्शन, इस फार्मूला को करने के लिए पाइथन में हम क्या यूज करते हैं। ये फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है प्रवीण, आपको बेसिकली नमपाई में वो कौन सा फंक्शन यूज होता है उसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? होप यहाँ पे क्लियर हुआ हो थोड़ा एग्जांपल से कि कैसे मैथ का यूज हो रहा है, क्यों यूज होता है, जैसे ये सब स्टोर हो रहा है ना वैल्यू। और भी है, जैसे इमेजेस हम मैट्रिसेस और पिक्सल्स में करते हैं, फेस रिकॉग्निशन के लिए होता है। कैलकुलस हम कहाँ करते हैं, तो कैलकुलस करते हैं एरर को मिनिमाइज करने के लिए। और प्रोबेबिलिटी का हम यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। जैसे आपको तो पता है प्रोबेबिलिटी वही होती है, प्रोबेबिलिटी का हम करते हैं कभी मान लो कि फ्रॉड डिटेक्शन करना है कि हमारा ये पेमेंट फ्रॉड हुआ है, या फिर आपको डिटेक्ट करना है कि स्पैम डिटेक्ट करना आपके ईमेल्स में, तो हम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का हम लोग यूज करते हैं हेल्थ केयर में, टेस्टिंग में, जैसे हॉस्पिटल वगैरह ना। कैन समवन म्यूट? स्टैटिस्टिक्स का हम लोग यूज करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन एआई इन हेल्थ केयर। अब जैसे हेल्थ केयर में क्या होता है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं बेसिकली चेक करने के लिए कि जो हमने जो दवाई, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने जो नई मेडिसिन बनाई है, वो मेडिसिन कितना काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम लोग, ये तो कुछ और ही आ गया यहाँ पे, उसके लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। तो ये है कुछ मैथ के बारे में, आपको बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा साइंस। मैथ का थोड़ा क्या मतलब, बेसिक फाउंडेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आप मशीन लर्निंग को अच्छे से कर पाओगे। इसका एक और रीज़न है, इसका एक रीज़न ये है कि आजकल क्या हो गया है कि एआई और मशीन लर्निंग जो है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज होने लगा है काफ़ी, हेल्थ केयर में और गवर्नमेंट एजेंसीज में। तो वहाँ पे एरर के चांसेस कम होने चाहिए। सपोज कि हमने कुछ ऐसा एआई टूल बनाया है जो कैंसर डिटेक्ट करता है, काफ़ी सारे टूल्स बन रहे हैं जो इमेज से ही डिटेक्ट कर लेगा कि वो कैंसर है कि नहीं है, या उसको कौन सी बीमारी है, वो टूल्स बन रहे हैं। तो अगर सपोज आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल जो आपने बनाया है वो रॉन्ग डिटेक्ट कर ले, रॉन्ग प्रिडिक्ट कर दे कि इसको कैंसर है, तो यहाँ पे एरर चांसेस कम होने चाहिए। तो इस वजह से हमें मैथ मीन्स, इस वजह से यू हैव टू बी अ गुड डेटा साइंटिस्ट। एक डेटा साइंटिस्ट अगर अच्छा नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कंपनी आपको नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे डिसीजन लेने होते हैं। डेटा साइंटिस्ट ही डिसीजन लेता है
कंपनीज के अंदर कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कंपनी ने गलत इन्वेस्ट कर दिया तो कंपनी को लॉसेस होते हैं। डेटा साइंटिस्ट ही डिसाइड करता है। डेटा साइंटिस्ट नाम क्यों है डेटा साइंटिस्ट? क्योंकि डेटा साइंटिस्ट ही कंपनी को बताएगा कि आपको किस ऐड में कितना खर्चा करना है, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे प्रिडिक्शन करनी है, कहाँ पे क्या करना है, कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा सेल होगा, कौन सा कस्टमर कौन सा आइटम खरीद सकता है, कौन से कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है। ये सारा काम डेटा साइंटिस्ट करता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या इवन करता है? सर कोविड के टाइम पे भी मतलब जैसे कि कहाँ का सर्च हो रहा है ज़्यादा कोविड केसेस और वहाँ पे वैक्सीनेशन ज़्यादा प्रोवाइड करना, उस समय भी हाँ काम आ ही रहा था। यस, उस समय भी डेटा साइंटिस्ट का काम आता है। तो मान लो अगर आप किसी डेटा साइंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपकी मैथ की स्किल अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपको ऐसा मॉडल बना दोगे जो गलत प्रिडिक्ट करे। मतलब जिसको वैक्सीन नहीं लगना है उसको लगा दोगे, जिसको लगना है उसको नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे एरर ऑफ चांसेस कम होते हैं, मींस आप मिस्टेक नहीं कर सकते। ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है फ्रंट एंड बैक एंड का जहाँ पे बग्स आए हैं तो वो चल जाएगा, वो फिर आप उसको रिजॉल्व कर दो। ये अलग है, ये मशीन लर्निंग फील्ड अलग है थोड़ा सा। यहाँ पे एरर ऑफ चांसेस जैसे आपका फ़ोन ही है, मान लो मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया है फेस रिकॉग्निशन का, वो क्या करेगा कि किसी के भी कोई भी पर्सन के फेस से आपके फ़ोन को अनलॉक कर देगा। तो आपकी पूरी डेटा, प्राइवेट डेटा आपकी रिस्क पे आ गई, तो वो मोबाइल कंपनी वाले मुझे पकड़ेंगे कि भाई तूने कैसा मॉडल बनाया, ये तो कोई काम का ही नहीं है। तो दैट्स वाई इट्स अ रिस्की फील्ड, यहाँ एरर ऑफ चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए प्रवीण मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो एक रजनीकांत का रोबोट मूवी आया था। हाँ, इट्स अ गुड एग्जाम्पल। जो मतलब हाँ वही है, सेम वही कहानी है। एनी अदर क्वेश्चन? Anyone? Sunil, you are new. Sunil joined today only, so सुनील को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। सुनील, आपको कुछ पूछना आप पूछ सकते हो। और अभी पता है सबसे अच्छा कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो है राजेश। मैंने इनकी परफॉर्मेंस चेक की, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने क्विजेस वगैरह कंप्लीट कर लिए, बाकी ने अभी तक नहीं कंप्लीट किया क्विज वगैरह। चलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मतलब आई थिंक समथिंग कुछ समझ में आ रहा है। मैंने मतलब वो ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास वगैरह देखी थी। जी सर। अभी मतलब इंग्लिश मेरे को इतने प्रॉपर तरीके से नहीं आती, मतलब बेसिकली हिंदी में पूछता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो आप सीख जाओगे धीरे धीरे। इंग्लिश ऐसे सबको अच्छे से मतलब वो धीरे धीरे सीख जाओगे जब कम्युनिकेट करोगे ना। स्पोकन की क्लासेस भी ज्वाइन कर रही है धीरे धीरे। हाँ ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम आता है ग्रुप में पिंग करो, जिनको भी सॉल्यूशन पता होगा वो आपको आपकी हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जैसा देख रहा हूँ, अभय ने अभी तक कंप्लीट किया है 2 hours 35 minutes, परवीन 1 hour, राजेश 2 hour 20 minutes। और क्विजेस के रिजल्ट्स देखता हूँ। ओके, तो अभय के मार्क्स आए 30। क्यों? पाइथन इज नोन एज अ मशीन लैंग्वेज। पाइथन मशीन लैंग्वेज नहीं है भाई, पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें आंसर है तो मल्टी लैंग्वेज। बेसिकली मैं अभी क्या ना, आप ये जो अभी क्लास कर रहे हैं तो आपने बताया हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इस तरह कोर्स में नहीं सुनेगा, तो मैंने अपना लॉजिक लगाया था। हाँ ओके, ये मल्टी लैंग्वेज हो सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज है ये, मैं अभी जाना आपने बताया। ओके मेरे हाथ में नहीं करता इसलिए। हाँ ओके।
एक्स इज इक्वल टू पाइथन, हम जब प्रिंट एक्स को प्रिंट करेंगे तो एरर क्यों देगा ये? कोई स्पेसिफिक रीजन? ये पैटर्न होगा ये मुझे था, बट मैंने ट्राई किया VS कोड पर, तो वो गलत उस समय पता नहीं कर दिया, और फिर बाद में मैंने ट्राई किया इस पर, ये जुपिटर नोटबुक पर, तो फिर वो सही दिया। तो ओके उसकी वजह से नहीं था कि पाइथन ही होगा, जहाँ तक नॉलेज मैंने ये किया था, लेकिन उसमें मैं गड़बड़ होकर ये दोनों आंसर गलत कर दिया। 7 भी होगा ये भी मालूम जब था, भी मतलब अच्छे से बताया जब था भी मैंने। कोई छोटा कोड रन करना हो ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा VS कोड खोलने की ज़रूरत है। सिंपल गूगल पे जाके सर्च करो पाइथन कंपाइलर, काफ़ी सारे कंपाइलर आ जाएंगे, ओपन करो और यहाँ पे जाके अपना कोड को सीधा ऐसे भी रन कर सकते हो। कोई छोटा पाइथन का कोड हो तो जैसे मैंने इसको रन किया अभी यहाँ पे, अभी आप देखो यहाँ पे इसने मुझे आउटपुट दिया, बीच में स्पेस है। ये राजेश ने भी ये चीज़ गलत किया था। तो यस सर, करेक्ट। ये जो A ये और मैंने B है, गलत यहाँ पे करा। B के पहले यहाँ पे एक स्पेस है, इस वजह से यहाँ पे स्पेस आ रहा है। नहीं, तो मैंने चेक किया था, मैं इससे चेक कर रहा था। हाँ, तो इस वजह से ये, तो यही था क्विज। जिसने भी अभी तक नहीं किया आप कर लो, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो ये था हमारा आज का क्लास। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो अभी भी। एनी क्वेश्चन? मेरा खाली एक जगह गलत हुआ था, चेक करते हैं, एक सेकेंड ना। वो हाँ, इसमें हुआ था क्योंकि, हाँ ये मैं समझ रहा हूँ क्यों, क्योंकि बहुत लोगों ने ये हाँ, इक्वल टू भी डाला था इसमें। बस वही। वैसे ये गलत नहीं है, सही है। ये थोड़ा सा मीन्स आपकी आंसर ये रॉन्ग नहीं है, करेक्ट ही है। फाइन। यस परवीन। मेरी वो असाइनमेंट आई एम rating rather than assignment operator. I wrote equal to operator, sir. I have wrong. I have become that wrong. I know answer, but I wrote equal to operator. Ah, that's the rather same than writing thing. Same thing. assignment operator. Same thing. Ah. Deva also did. And कुछ